Hello students, I am Priyanka Jaiswal and today we start our lecture by taking the topic that is errors and evolution. Okay, this is your third unit of inorganic chemistry. Okay, so here errors. Errors are most common things in our life or in chemist lives. Okay, there are various experiments which are done in everyday life. Okay, and there are lots of error your uh, in your practicing experiment and all. Okay, so here अगर कोई एरर भी होती है या फिर कोई कुछ एरर्स आती है तो हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ द परफेक्ट इवैल्यूएशन फॉर दैट. ओके, हियर वी स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स in this topic. Okay, so first of all I would like to give a small introduction to your topic. Okay, सो इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरऑल एक मीन्स आइडिया लेंगे कि हमको ये टॉपिक में क्या पढ़ना है एंड व्हाट आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर सिलेबस. ओके, सो हियर these are the contents. First of all, I want to give introduction to the about the errors and evolution. Okay, then after introduction there are the types of errors, systematic errors and random errors. Okay, and there are types again there is absolute error and relative error and some of the statistical parameters, and after that some of the significant figures and rejection of q test data. Okay, these are all about the topic. So first of all I want to give you an simple introduction on the topic that is error and evolution. Okay, in an experimental science such as chemistry, much efforts is expended in gathering the data and most of the data is quantitative. Okay, reliability of the data is immense important. Mere obtaining data is not sufficient, but obtaining good data is necessary. Okay student, when you are performing an experiment or handling an simple instrument, there are various types of errors or various types of data you have. Okay, so जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम डेंसिटी बॉटल ही यूज़ करते हैं तो जब हम कांस्टेंट निकालते हैं तो उसमें कुछ 0.01 का या 0.02 या फिर कुछ तो भी उसमें एरर या डिफरेंस आ सकता है. सो in your experimental science such as chemistry, so there is the expended data or expend, so that there is importance of reliability of data. Okay, so यहाँ पर जो डाटा होता है वो कम डाटा हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम ऐसे टाइम में एक रिलायबल या फिर रिप्रोड्यूसेबल डाटा अगर हमको ऑब्टेन करना है तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर फाइंड करते हैं जिससे जो एरर्स है वो क्या होगा, कम होगा. ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ द एनालिसिस इज डिपेंड्स ऑन 2 क्राइटेरिया. हाउएवर दिस 2 वर्ड्स आर जस्ट क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव. तो ऐसे टाइम में हम क्वांटिटी तो यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डाटा अगर डाटा ले रहे हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में जो डाटा गैदर हो रहा है तो इस टाइम में हम डाटा तो ले रहे हैं लेकिन डाटा कैसा है, डाटा क्वांटिटेटिव है, लेकिन हमको क्या चाहिए, उसमें क्वालिटी चाहिए. तो जो भी डाटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डाटा कैसा होना चाहिए,
क्वालिटेटिव होना चाहिए, वो डाटा की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए. इन ऑर्डर टू मेजर द रिलायबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द डाटा quantitatively, the observations are subjected to rigorous statistical treatment. Statistics play important role in analytical chemistry. Although it is not possible to cover complete theory of the probability and uncertainty, we shall try to cover some important aspect of the basic statistical evaluation of the observation. Okay students, here हमको ये पता है कि हमको अगर किसी भी चीज़ का क्या करना है, कोई हम लोग डाटा लेते हैं, एक तो हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं कभी, या फिर कोई डेंसिटी ही निकालना है हमको अगर डेंसिटी बॉटल से, तो हम क्या करते हैं, एक ही ऑब्जर्वेशन से वो जो रिज़ल्ट होता है वो एक ही ऑब्जर्वेशन में पक्का नहीं कर लेते, वो 4 से 5 हम रिज़ल्ट लेते हैं, उसका डाटा गैदर करते हैं, एंड अगेन ऑन दैट we take a mean of that data. या फिर for example simply we can do the we can do what टाइट्रेशन. ओके, जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो एक ही टाइट्रेशन का जो डाटा आता है उससे हम डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट सो करेक्ट. ओके, there is a mistake or there is a difference between two data or two readings. To overcome that problem, so what we can do, we take 2 or 3 readings of that and we take a mean of that and can take the results. सो ऐसे ही होता है जब हमको अगर एरर्स को कम करना है या फिर क्वालिटेटिव रिज़ल्ट अगर चाहिए, रिलेबल और रिप्रोड्यूसेबल अगर रिज़ल्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसकी गैदर करते हैं डाटा और उसके बाद में उसका एरर कम से कम करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द एरर. ये तो हमने देखा है कि एक्सपेरिमेंट होता है, देन एक्सपेरिमेंट के बाद में हम जो रीडिंग्स लेते हैं उसमें डिफरेंस आता है, इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं. बट द फर्स्ट क्वेश्चन और आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू द एरर्स. सो व्हाट इज द एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू. ओके, एरर क्या होता है? एरर मीन्स जो ट्रू वैल्यू होता है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है उसका डिफरेंस होता है एरर. ओके, हियर सो एरर्स जो होते हैं, एरर्स के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं. एरर्स जो होता है वो क्या होता है, क्लासिफाइड होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरर होती है वो 2 टाइप की एरर है. ओके, वन इज़ अ सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड इज़ रैंडम एरर. इन दिस टॉपिक और इन दिस लेक्चर वी आर ओनली स्टडी अबाउट दैट दिस ट्री डायग्राम अबाउट द एरर्स, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द brief information about the errors, that is the classification of error or the okay. So here errors are classified as systematic error and random error. So systematic error means what? That is determinate error. means ऐसी एरर होती है जिसमें अगर कभी एरर हो भी जाती है तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, डिटर्मिनेट कर सकते हैं कि ये एरर कितनी हुई है. ओके, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं. द एरर विच कैन बी अवॉइडेड and whose magnitude can be determined, that is known to be systematic error. Okay, but in case of the error which is not avoidable and their magnitude cannot be determined, that is known as random error. Okay, जो random error होती है वो indeterminate error होती है, मीन्स हम उसको निगलेक्ट या अवॉइड नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द रैंडम एरर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरर होती है मीन्स दैट इज़ सिस्टमेटिक एरर, जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, या फिर उसको हम कैसे क्या कहते हैं,
determinant error. So this determinate error or systematic error are classified into 4 types. That is what? First is a personal error or operational error. Second is additive or proportional error, instrumental or reagent error, and last one is the methodic error. These are the all about the types of errors. This is the tree diagram. If you want to take the screenshot, then you can take it and write down in your notebook. And जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको आपको एक छोटी कॉपी करना है और उसमें आपको लिखना है. एंड वेन एवर यू गेट टाइम एंड आई आस्क यू फॉर दी सबमिशन, आपकी जो कॉपी है उसको आपको सबमिट करना है. सो रेगुलरली डेट वाइज आपको डेट डालनी है आपके बुक पे. और जो भी मैं इसमें टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप सुनते हुए भी लिख सकते हो, या फिर यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.